arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. So today, let us examine ourselves. If there is anything to confess that we have sinned against God, let us confess. And so that he may heal our personal life and also our churches and also our nations. Let us examine ourselves. Father Lord, we thank you for this beautiful morning, and thank you for your guidance and presence, Lord. And today, Lord, we confess our sin that against you, Lord. Forgive our sin, Lord, and enable us to stand before you, righteous, Lord. And please, Lord, forgive our sin and heal our land, Lord. Heal our hearts and our churches and our people, Lord. In Jesus' name we pray. A greeting to you in the name of Jesus Christ. And our God is good, isn't it? Is there who can say our God is not good for us? No, our God is very good. So his love is also very gracious, and his love is very great, and his love is compassionate love. So let's stand together and sing a song. Thy loving kindness is better than life. And we'll join with the worship team. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as well I praise thee. I will lift up my hands unto thy name. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as will I praise thee. I will lift up my hands unto thy name. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I praise thee. I will lift up my hands unto thy name. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I praise thee. I will lift up my hands unto thy name. As we are remaining standing, so now it's time to intercessory prayer. So if congregation have any prayer request, you can mention this now. We'll pray for our churches and who are undergoing through persecution in our lands. And there are many Christians who are suffering from financial. In many areas they are suffering. So we'll pray for them, and we'll pray for this our community, that we may be strengthened in faith more and more. Let's pray along with Brother Rahul. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका जो विश्वास योग्यता है प्रभु, वो आज भी हमारे जीवन में देखते हैं हम प्रभु जी। हम अगर आज यहाँ पर खड़े हैं प्रभु, ये आपकी विश्वास योग्यता है प्रभु। और जिस प्रकार से प्रभु आज के जो प्रार्थना के निवेदन दिए गए हैं परमेश्वर से, कई लोग हैं परमेश्वर जो सफ़र करते हैं फाइनेंशियली और बहुत सारे तरीक़ों से यीशु मसीह। आपके सेवक खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप उनके साथ रहें यीशु मसीह। आप उनकी हर एक कमी घटी को खुदावंद आप उसको आशीष करके परमेश्वर आप उसको कई गुना बढ़ा दें खुदावंद।
परमेश्वर उनकी कमी से कमी में से परमेश्वर आप उनको बहुत ऐसे आशीष करें प्रभु जी, और उनको किसी बात की घटी ना होने पाए। यीशु मसीह हम हमारे समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे समुदाय को परमेश्वर आप आशीष करें खुदावन, अपने हाथों में लेकर आपने इस समुदाय को बढ़ाया है यीशु मसीह। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने वाले दिनों में भी प्रभु आप इस समुदाय को आशीष करें खुदावन, और इस समुदाय में हर एक इंसान की प्रभु दिलों की ख्वाहिश को परमेश्वर आप पूरा करें खुदावन, हम में से हर एक के साथ रहें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Please be seated. Christian lives are unique मसीही जीवन अलग है, and thus requires different qualities that stand out from the worldly behaviors. और ये ऐसे गुणों की मांग करता है जो कि संसारिक व्यवहार से बिल्कुल अलग है। In order to grow as Christian, मसीही रूप में बढ़ने के लिए we must inhabit certain characteristics that is fundamental to our belief. हमें कुछ ऐसे गुणों को अपनाने की ज़रूरत है जो कि हमारे विश्वास पर आधारित हों। Our attitudes and characteristics shape us हमारा जो चरित्र है और हमारा जो विशेषताएं हमें आकार देते हैं and identifies us as who we are. और हमें इस पहचान को बताते हैं कि हम कौन हैं। Our characteristics or nature affects the way we do things in life, great and small. हमारे जो गुण और हमारा जो व्यवहार है वो हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, The way we treat our loved ones, friend that we have, और जिस प्रकार से हम अपने प्रियजनों से और हमारे दोस्तों से मिलते हैं, and even our worldview change. और हमारे दृष्टिकोण भी बदल जाता है। And it changes our relationship with God and people. और यह हमारे रिश्ते को लोगों और परमेश्वर के साथ प्रभावित करते हैं। There are some characteristics that we can glimpse from Mark chapter 1, 40 to 45. मरकुस के पहला अध्याय 40 से 45 आयत में हम कुछ ऐसे गुणों को देख सकते हैं। May I request Brother Rahul to lead us in reading the Bible. मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 40 से 45 आयत। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहरी जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। According to Mark is the shortest of the four gospel that we have received. मरकुस का सुसमाचार बाकी सभी चारों सुसमाचार में सबसे छोटा सुसमाचार है। The gospel of Mark is a gospel of action. यह सुसमाचार एक क्रिया का सुसमाचार है। This gospel is less about what Jesus taught, but more about what Jesus did. यह सुसमाचार यीशु की शिक्षाओं से बढ़कर यीशु के कार्यों को दिखाता है। It is believed to be written in approximately 65 to 70 AD. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह सुसमाचार 65 से लेकर 17वीं ईस्वी के बीच में लिखा गया था। Mark writes to the Roman church who are undergoing through the persecution of Roman Empire. मरकुस यह सुसमाचार रोम की कलीसिया को लिखता है जो कि रोमी साम्राज्य द्वारा किए गए सताव का सामना कर रही थी। Based on the reflection from the passage, today's message is entitled as आज के पढ़े गए गद्यांश के अनुसार आज के जो संदेश का जो शीर्षक है Characteristics of True Believer. एक सच्चे विश्वासी के विशेषताएं। Characteristics of True Believer. सच्चे विश्वासी की विशेषताएं। In Matthew, the healing of the lepers takes place after the Sermon of the Mount. मत्ती के सुसमाचार में ये कोढ़ी की चंगाई का वर्णन पहाड़ी उपदेश के बाद किया गया है। And in Luke, it occurs right after the miraculous catch of fish and the call of Peter, James, and John. लूका के सुसमाचार में इसका वर्णन चमत्कारी रूप से मछली के पकड़े जाने और पतरस, यूहन्ना और याकूब की बुलाहट के बाद किया गया है। But in Mark, it comes after the healing of Peter's mother-in-law and numerous others. लेकिन मरकुस के सुसमाचार में इसका वर्णन यीशु पतरस की सास और बाकी लोगों की चंगाई के बाद किया गया है। Through this text, we can glimpse three characteristics of true believer. इस गद्यांश के अनुसार हम 3 बातों को देख सकते हैं। So let us see what are those and let us meditate upon them. आइए हम देखें कि सच्चे विश्वासी के जीवन में वो क्या बातें हैं और हम उनके ऊपर मनन करें। The first and the foremost is जो पहला है वो यह है, seeking the will of God in the midst of problems. समस्याओं के बीच में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना। Seeking the will of God in the midst of problems. समस्याओं के बीच में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना। The term leper or leprosy in the Old Testament and New Testament most likely includes a variety of skin disease along with the disease of leprosy.
पुराने और नए नियम में जो कोढ़ शब्द का प्रयोग है वो बाकी सभी त्वचा के रोगों के लिए भी किया गया था। Strict law were made to keep people, lepers separate from others. Leviticus chapter 13 and 14. ऐसे सख्त कानून कोढ़ियों के लिए बनाए गए थे ताकि उनको दूसरे लोगों से अलग रखा जा सके। They are banished from the fellowship of the community. उन्हें दूसरे लोगों की संगति से निकाल दिया गया था। They are excluded from the society and even their family. उन्हें उनके परिवार से, उनके समाज से निकाल दिया जाता था। If they walk along the road, यदि वो एक रास्ते से होकर गुजरते थे, they had to wear torn clothes, उन्हें फटे हुए कपड़े पहनने होते थे, long hair, लंबे बाल रखने होते थे, covering upon his upper lip, अपने होठों को ऊपर से ढकना होता था, and he could not go into anyone else's house. और वह किसी के भी घर नहीं जा सकते थे। And they had to shout, unclean, unclean. और उन्हें इस बात को चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध। Leprosy was often regarded as a punishment of sin. कोढ़ी को एक तरह से पाप की सजा के रूप में देखा जाता था। They are often prevented from entering the holy city of Jerusalem. उनको यरूशलेम में पवित्र नगर में जाने से भी उनको मनाही दी जाती थी। One of the worst aspects of leprosy was the social isolation it brought. सबसे जो बुरी बात वो यह थी कि उनको समाज से अलग कर दिया गया था। By the time of Jesus, the rabbis has added many more restrictions to the law governing lepers. यीशु मसीह के समय में जो रबीज थे उन्होंने कई ऐसे नियम बना दिए थे इन कोढ़ियों के लिए। If a leper even stuck his head inside a home, it was considered unclean. यहाँ तक कि कोढ़ी यदि किसी घर में झांकता भी था तो यह भी एक अशुद्धता को दिखाता था। And it was against the law to greet a leper. किसी कोढ़ी से मिलना नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। When it was determined that a man is leprosy, he is no longer allowed to have communion with other people. यदि इस बात का पता लग जाता था कि कोई कोढ़ी हो गया है तो उसको दूसरे लोगों के साथ संगति करने के लिए नहीं दिया जाता था। He had to leave his family. उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ता He था। had to leave his friends. उसे अपने दोस्तों को छोड़ना होता था। He could not touch his family. वह अपने परिवार को छू भी नहीं सकता था। He could only see from afar, distance. लेकिन एक दूरी पर रहकर वो अपने परिवार को देख सकता था। According to Luke, लूका के अनुसार this man was covered with leprosy. Luke chapter 5 verse 12. यह जो मनुष्य था ये कोढ़ से ग्रसित था। The disease which attacked this man was very painful and greatly feared. यह जो कोढ़ इस मनुष्य को लगा था यह बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। This man experienced a pitiful existence, not only physical ravage of the disease, but also ritual uncleanness. इस मनुष्य ने जो कोढ़ी के कारण बहुत ही जो अपने दर्दनाक परिस्थिति को सहता है, सिर्फ शारीरिक रूप में अपने पीड़ाओं के कारण नहीं, लेकिन अशुद्धता जो धार्मिकता के कारण जो अशुद्धता थी उसके कारण भी इसने बहुत पीड़ा को सहा था। Leprosy brought anguish at all levels, physical, mental, social, and religious. ये जो कोढ़ी का जो था ये से कई प्रकार से पीड़ाओं को लेकर आता था, जो मानसिक रूप से हमारे शारीरिक रूप से भी। The rabbis regarded leprosy as humanly incurable. रबीस ऐसा मानते थे कि इस कोढ़ की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। Only twice does Old Testament records that God cleansed a leper. पुराने नियम में हम कोढ़ की चंगाई को सिर्फ 2 बार देख सकते हैं। Miriam number 12, 10 to 15, Naaman, 2 Kings 5, 1 to 14. पहला हम देखते हैं मरियम में जो कि गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय 10 से 15 आयत में। दूसरा हम देखते हैं नमान की चंगाई जो कि दूसरे राजा उसका 5 अध्याय 1 से 14 की आयत में हम उसे देख सकते हैं। This man came to Jesus humbly and he came in faith. यह मनुष्य यीशु मसीह के पास बहुत ही नम्रता के साथ और विश्वास के साथ आता है। The Greek word used for two is pros, which means face to face and which means very close to Jesus. यूनानी शब्द टू के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है प्रोस, जिसका मतलब है आमने सामने, जिसका मतलब कि यीशु मसीह के बहुत ही ज़्यादा करीब। This man crossed the religious and social boundary that he should not approach people very closely. यह मनुष्य सामाजिक और धार्मिक सभी सीमाओं को लांघकर लोगों के पास आ जाता है, यीशु मसीह के पास आता है, जो कि किसी को नहीं करना चाहिए था। And it was unlawful for a leper to approach within 50 feet of a clean person. एक कोढ़ी के लिए 50 फीट से ज़्यादा दूरी को लांघकर किसी के पास जाना नियमों के खिलाफ था। And if it was windy day, the rule was changed 200 feet. यदि ये ऐसा दिन होता था जिसमें बहुत तेज हवा चल रही होती थी तो यह दूरी 200 फीट की हो जाती थी। For what this man approached Jesus, even it cost life. ऐसी क्या बात थी कि ये मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है, यहाँ तक कि उसको अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी। For his healing? उसकी चंगाई के लिए? नहीं. No. He is beseeching Jesus and falling on his knees and asks Jesus, if you are willing, you can make me clean. यह मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है और घुटने टेककर यीशु मसीह से यह कहता है, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। If you are willing, you can make me clean. यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। The Greek word katarisai means to make clean or to declare clean.
यूनानी शब्द के थार्साए जिसका मतलब है शुद्ध कर देना या फिर शुद्ध घोषित कर देना। Here it is used the former sense to make clean. यहाँ पर एक फॉर्मल सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि शुद्ध कर देना। The leper is asking and seeking the will of God, not the healing. यहाँ पर जो कोढ़ी है वो अपनी चंगाई को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को ढूंढता है। What a beautiful and profound prayer. यह कितनी ही सुंदर और अद्भुत प्रार्थना है। Even in the midst of his misery situation, he asks Jesus' will. यहाँ तक कि वो अपनी घोर निराशा के समय में यीशु मसीह से उसकी इच्छा को पूछता है। If we were a leper today, how would be our prayer to Jesus? यदि आज हम एक कोढ़ी होते थे हमारी परमेश्वर से कैसी प्रार्थना होती? I think if I were a leper, I would pray like this. मैं ऐसा मानता हूँ यदि मैं कोढ़ी होता मैं इस प्रकार से प्रार्थना करता। Lord, I have passed through difficulties to meet you, परमेश्वर मैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके यहाँ पर आया हूँ and now I'm kneeling before you, and now you clean my disease. और अभी मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ और मुझे अभी चंगा कर दीजिए। I think most of us, we are doing like this. मैं ऐसा मानता हूँ कि हम में से कई ऐसा करेंगे। Yes, today most Christians are asking God's will to grant that what they want to do. आज कई मसीही अपनी इच्छा को पूरा करवाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। And what about you and me today? आपके और मेरे बारे में क्या है? How do you pray to God and for what? हम परमेश्वर से क्या और कैसे प्रार्थना करते हैं? Here the leper's prayer is not for healing, but for the will of Jesus. यहाँ पर इस कोढ़ी की प्रार्थना उसकी खुद की चंगाई के लिए नहीं परंतु यीशु मसीह से वह उसकी इच्छा को पूछता है। Let us pray and ask the will of God in the midst of our life's problems. आइए हम अपने जीवन की समस्याओं के मध्य में परमेश्वर से उसकी इच्छा को पूछें। Not for the wealth, हम धन दौलत के लिए नहीं, prosperity, समृद्धि के लिए नहीं, fame, नाम के लिए नहीं, possessions, किसी स्थान के लिए नहीं, but for the will of God. लेकिन परमेश्वर से उसकी मर्जी के लिए। My second point is मेरा दूसरा बिंदु है extending God's compassionate love. परमेश्वर के तरस भरे प्यार को दिखाएं। Extending God's compassionate love. परमेश्वर के तरस भरे प्रेम को दिखाएं। Jesus see this poor man and he see his condition. यीशु मसीह इस गरीब इंसान को उसकी स्थिति को देखता है। He does not shrink back in fear of the leper as the rest of people are doing. जिस प्रकार बाकी सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं उस कोढ़ी को देखकर, यीशु मसीह वैसा नहीं करते। He is not repulsed by his appearance or by his smell. यीशु मसीह उसकी मौजूदगी और उससे आने वाली बदबू के कारण उसे घृणा नहीं करते। We are told that Jesus moved with compassion. हमें ऐसे बताया गया कि यीशु मसीह तरस से भर गए। Splagnite is the verb is derived from splagnon, whose plural splagna, which mean the inward parts included heart, liver, lungs, etc. सब किनथेइस जो कि एक क्रिया है जो कि स्प्लैंक कनोन से आई है जिसका बहुवचन है स्प्लैंकना, जिसका मतलब है कि अंदरूनी भाग जिसमें हम हमारे हृदय, हमारे गुर्दे और हमारे फेफड़ों को देख सकते हैं। Compassion is the characteristic of God and it is also duty of disciple to show. Ephesians 4:1-2, Philippians 2:1-2. तरस खाना परमेश्वर का एक गुण है और जो चेले थे उनको भी इस तरस को दिखाना जो था उनका कर्तव्य था। When we read that Jesus moved with compassion, जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह तरस से भर गए, it means that he feel himself so deeply into the suffering of the leper that it is just as if he himself is suffering as a leper. तो इसका मतलब यह था कि उस कोढ़ी को देखकर यीशु मसीह उसकी पीड़ा की इतनी ज़्यादा गहराई में चले गए थे कि मानो वो खुद एक कोढ़ी बन गए हों। It's not just feeling pity. यह सिर्फ एक एहसास नहीं था किसी दया के लिए। How do we feel if we see the poor people and the untouchable people today? आज हम कैसा महसूस करते हैं, हम कैसा एहसास करते हैं जब हम किसी कोढ़ी या किसी गरीब इंसान को देखते हैं? Do we have compassion for them? क्या हमारे अंदर उनके लिए तरस है? To touch a leper made one unclean and was strictly forbidden by the law. किसी कोढ़ी को छूना अशुद्धता को कर देता, उसके लिए अशुद्धता हो जाता था और ये नियमों के बिल्कुल ऐसा करना नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। But what did Jesus do? लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या करते हैं? He touched him. यीशु मसीह ने उन्हें छुआ। Jesus reaches out his hands and touches the leper. यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर उसको स्पर्श करते हैं। There are different kinds of touch. यहाँ पर हम कई प्रकार के स्पर्श को देख सकते हैं। Like this. इस प्रकार से, Look careful to me. Like this. इस प्रकार से Like this. और ऐसे भी। Here the Greek word used for hepsatu is he touch. The verb heptumai literally means fasten, to cling to or take hold of. यहाँ पर जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया है वह है हेप्साटो, जिसका मतलब है कि उसने छुआ, जिसकी क्रिया है हेप्टोमाई, जिसका मतलब है बांध देना, चिपक जाना या फिर थाम लेना। Jesus' touch is not simply touch. यीशु मसीह का स्पर्श कोई साधारण स्पर्श नहीं है।
Jesus take hold of the leper. यीशु मसीह उस कोढ़ी को थाम लेते हैं। Can you imagine that? क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? Amazing love, how can it be, right? यह कितना अद्भुत प्रेम है, ऐसा कैसे हो सकता है? According to Moses' law, मूसा के नियम के अनुसार by touching the leper, he both became ceremonially unclean and exposed himself to the disease. Leviticus 13:45-46. उस कोढ़ी को छू लेने के कारण यीशु मसीह अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन और ये अपने अपने आप को उस रोग के लिए दे देते हैं। People will never have touched a leper out of fear of contracting the disease themselves. लोगों ने उस कोढ़ी को कभी नहीं छुआ होगा इस कारण से कि उसको छूने से वो कोढ़ कहीं उनके ऊपर ना आ जाए। But Jesus, the cleanest man in the crowd, he did not fear defilement. यीशु मसीह इस बड़ी भीड़ में जो सबसे शुद्ध मनुष्य था, अपने आप को शुद्ध होने से नहीं डरा। He touched him without fear. यीशु मसीह उसे बिना किसी डर के छूते हैं। For Jesus, there is no one who is untouchable. यीशु मसीह के लिए कोई भी अशुद्ध नहीं है। The leper could not transmit to Jesus the corruption of his disease. वो जो कोढ़ी था वो अपने रोग को यीशु मसीह के अंदर नहीं डाल सका। क्यों? Why? Because God cannot be defiled. क्योंकि परमेश्वर को कोई शुद्ध नहीं कर सकता। When he touched him, Jesus transmit his wholeness and holiness to the leper and make him clean physically, spiritually, and socially. लेकिन जब यीशु मसीह उस कोढ़ी को छूते हैं, यीशु मसीह अपनी संपूर्णता और अपनी पवित्रता को उस कोढ़ी के अंदर भर देते हैं, उसे चंगा कर देते हैं, शारीरिक रूप से, आत्मिक और सामाजिक रूप से भी। As follower of Jesus Christ, यीशु मसीह के लिए we need to reach out our hands to untouchable people and extend compassionate love of God to others people. यीशु मसीह के अन्याय होने के नाते आज हमें ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत है जिनके पास कोई नहीं गया। Sadly, today many churches they excommunicated the poor people and untouchable people. बहुत दुख की बात है कि आज बहुत सारी कलीसियाएं ऐसे लोगों को बहिष्कृत करती है। There are many preachers who preach about in Christ there is no Jews and Gentile. ऐसे कई प्रचारक आज हम देख सकते हैं जो इस बात को प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह में ना तो कोई यहूदी ना ही कोई अन्य जाति है। But what did they do in the church? लेकिन वो कलीसिया में क्या करते हैं? They discriminate the poor and untouchable people in the church. वो गरीब और ऐसे अछूत लोगों के साथ एक भेदभाव को रखते हैं। And Jesus says, I am willing, be clean. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। Katharistheis is properly a divine passive. यूनानी शब्द जो केथारस्थै है वो एक डिवाइन पैसिव है। A reverend Jews used to suggest God's action without mentioning him directly. एक जो श्रद्धालु यहूदी होता था वो परमेश्वर के काम को बताते थे परमेश्वर के नाम को लिए बिना। And thus implies that God is the active agent in the cure. और यह इस बात को दिखाता है कि जो चंगाई का काम है वो परमेश्वर का है। Here the active agent is in the cure is God, not the human. यहाँ पर जो चंगाई देने का जो जरिया है वो परमेश्वर है, ना कि इंसान। Now this is our time to share the pain and the suffering of the untouchable people and bring them to Jesus Christ. अब ये हमारा समय है कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं और उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएं। Jesus says a model characteristics for us to follow. यीशु मसीह ने हमारे सामने इस आदर्श चिन्हों को रख दिया है जिन्हें हमें अनुसरण करना जरूरी है। By reaching out the people, we need to transmit and extending God's compassionate love to others. ऐसे लोगों के पास पहुंचकर हमें उनको परमेश्वर के तरस भरे प्रेम को देना जरूरी है। My third point is मेरा जो तीसरा बिंदु है, testifying God in adversity. अपनी मुश्किलातों में भी परमेश्वर की गवाही दें। The Greek word embryomai here means be indignant or scold. यहाँ पर यूनानी शब्द एम्ब्रीमोमाई जिसका मतलब है नाराज हो जाना या डांटना। Here there are many arguments brought here by many scholars on why Jesus was angry. यीशु मसीह क्यों गुस्सा हुआ, ऐसा कई जो विद्वान हैं वो इस बात के ऊपर वाद विवाद करते हैं। And how it does apply to the situation just after Jesus showed compassion to the leper. और यीशु मसीह कोढ़ी को तरस दिखाने के बाद ऐसा क्यों करते हैं? But the general agreement is that the word means not merely to feel anger, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा माना गया है कि गुस्सा नहीं किया था लेकिन गुस्से को दिखाया गया था। but to show it well the dative of the personal pronoun or to with him indicates the object rather than the cause of the anger. और यहाँ पर जो गुस्सा था वो कारण नहीं था। So most translation carry the meanings sternly or strictly. कई सारे जो अनुवाद है वो इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार बताते हैं, सख्ती। For testimony to them is generally agreed here as a proof or evidence to the priest. और यह इस बात के लिए गवाही थी कि वो याजक के लिए गवाही का कारण हो। According to tradition, it was priests who would declare and pronounce that a man is clean. सामान्य तौर पर ये एक याजक के हाथ में होता था। जब याजक किसी को शुद्ध घोषित कर देता था तो वो इंसान शुद्ध घोषित कर दिया जाता था। So this phrase would serve as the proof to the priest and to one and all that the leper have been made clean now.
तो यह फ्रेज इस बात को दिखाता है कि जो प्रीस्ट है और बाकी सभी लोगों के लिए यह कोढ़ी चंगा हो जाता है। Jesus has commanded the leper to keep his healing secret, यीशु मसीह उस कोढ़ी को आदेश देते हैं कि तुम अपनी इस चंगाई को एक रहस्य के रूप में रखो, but the leper still preached. लेकिन वो कोढ़ी तब भी प्रचार करता है। His disobedience because of the uncontainable joy he has received because of the miracle. लेकिन वो उस बात को तब भी अपने अंदर थमा ना सका क्योंकि उसने वो जो चंगाई हासिल की थी उसकी खुशी उसके अंदर वो समा नहीं पा रहा था। In verse 44, the lepers doing what Jesus did, he fearlessly expressed his faith. आयत 44 में हम इस प्रकार देखते हैं कि उस कोढ़ी ने वैसा ही किया जैसे यीशु मसीह ने किया और ये विश्वास के साथ करता है। The command to stay silent shows that God's glory cannot be kept secret and does not depend on human effort. यहाँ पर जो यीशु मसीह उस कोढ़ी को आदेश देते हैं कि तुम शांत रहो और किसी से मत कहना, यह इस बात को दिखाता है कि जो परमेश्वर की महिमा है वो सिर्फ हमारे मनुष्य के कार्य पर आधारित नहीं है। Mark doesn't point out what the leper preached because the story is about Jesus, not the leper. तो जो मरकुस है वो यहाँ पर उस कोढ़ी के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पता था कि उसने क्या प्रचार किया था, लेकिन क्योंकि ये जो कहानी है वो यीशु मसीह की कहानी है, उस कोढ़ी की कहानी नहीं है। The term polar can function as much or many things. यहाँ पर जो यूनानी शब्द है पोला, इसका कई मतलब हो सकते हैं, जैसे कि बहुत या फिर बहुत सारी बातें। The lepers spread the word in all countryside. यह जो कोढ़ी है अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में यीशु मसीह के प्रचार को करता है। The term local literally means word is essentially a synonym for the gospel, which is talking about the kingdom of God and the life, death and resurrection of Christ and about the coming of the Holy Spirit. जो यूनानी शब्द है जिसका मतलब है शब्द, जिसका जो दूसरा एक और मतलब है सुसमाचार, और यह परमेश्वर के राज्य की बात करता है और यीशु मसीह के जीवन, उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में बताता है। The lepers sharing the word despite the command of silence functions positively to view Jesus' fame and glory. यहाँ पर उस कोढ़ी का परमेश्वर के वचन को बांटना एक तरह से उसकी यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करता है, लेकिन दूसरे रूप में हम जब देखते हैं यह एक सकारात्मक रूप है जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है। The ex-leper spreads the word which transforms his life and gives him a brand new life. यहाँ पर इस कोढ़ी को जो चंगाई पा चुका था उसका प्रचार का करना उसके जीवन को बदल देता है और उसको एक नया जीवन देता है। Here I want to draw your attention to the background of Markan community, यहाँ पर मैं आपका ध्यान मरकुस के समुदाय की ओर लेकर आना चाहता हूँ, in which the leper is testifying about Jesus. जिसमें कि जो कोढ़ी है यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। The Markan community is going through under persecution. जो मरकुस की समुदाय था वो एक तरह से सताव का सामना कर रही थी। They are not allowed to proclaim about Jesus. वो यीशु मसीह के नाम को प्रचार नहीं कर सकते थे। Many people are killed because of the gospel. कई सारे लोग मारे गए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। Mark writes to the Roman believers to encourage them that not to afraid but to be bold and proclaim the gospel which saved them from their sin. मरकुस यह सुसमाचार रोम की कलीसिया को लिखता है ताकि वो लोग साहसी बने और वो प्रोत्साहित हो जाएं, ना कि वो भयभीत हों, बल्कि साहस होकर उस सुसमाचार का प्रचार करें जो उन्हें उनके पापों से बचाता है। Today we are also called to testify his goodness to others even in the midst of our adversity. आज हमारे जीवन की बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आज हम बुलाए गए हैं कि हम उसकी जो भलाइयां हैं उसका हम गवाही दें। Jesus commands us to go in the entire world and preach the gospel to all creation. यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया कि हम सारे संसार में जाए और उसके सुसमाचार का प्रचार करें। The result of lepers preaching is that Jesus is no longer to enter the city. और उस कोढ़ी के प्रचार करने के कारण यीशु मसीह शहर में दोबारा नहीं दाखिल हो सका। Because of chapter 1 verse 35 to 39, this should not be interpreted negatively. और पहले अध्याय 35 के 39 आयत के अनुसार हम इसका हम मतलब नकारात्मक रूप में नहीं समझ सकते। No negative response has been indicated thus far in Jesus' ministry. अभी तक यीशु मसीह की सेवकाई में कोई भी ऐसी नकारात्मक बात नहीं आई थी। On the contrary, Jesus' fame and popularity caused this problem. इसके विपरीत जो यीशु मसीह के नाम की प्रसिद्धि हुई थी वही एक कारण बना था। Yet people still came to him from everywhere. लेकिन तो भी ऐसा होता है कि चारों तरफ से लोग जो थे वो यीशु मसीह के पास आते हैं। Nothing can stop the gospel. कोई भी सुसमाचार को नहीं रोक सकता। There may be opposition and persecution, but the work of God cannot be stopped by the human being. यहाँ पर कई सारे जो सताव हैं वो ह्यूमन जो लोग हैं वो लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो परमेश्वर का सुसमाचार है उसका कोई नहीं रोक सकता। Let us examine ourselves today. आइए आज हम अपने जीवनों को देखें। Do we have these characteristics in our life? क्या हमारे जीवन में ये खूबियाँ पाई जाती हैं? Let us seek the will of God. आइए हम परमेश्वर की इच्छा को पूछें। Stop seeking your will and start seeking the will of God. आइए हम अपनी इच्छा को पूछना छोड़ें और परमेश्वर की इच्छा को पूछना शुरू करें। God's will is always good and important for us.
परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए बहुत ही भली और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। There are many people untouchable and unreached by the gospel. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अछूत हैं, जिनके पास आज तक सुसमाचार नहीं गया। Let's extend the compassionate love of God to those people to bring them back to Jesus Christ. आइए हम उस परमेश्वर के तरस भरे प्रेम को उन लोगों के पास लेकर जाए और इन लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। In ancient days, Christians are eager to reach unreached people and testify the gospel even if cost life. पुराने दिनों में ऐसा होता था कि जो मसीही लोग थे वो इतने ज़्यादा वो जोश से भरे होते थे कि वो सुसमाचार कहीं भी प्रचार करने चले जाते थे, ऐसी जगहों पर जहाँ पर कभी नहीं सुसमाचार प्रचार किया गया था, चाहे कि उनको अपनी जान भी वहाँ पर गंवानी होती थी। Many souls are crying out, if you will, you can make us untouchables king. आज बहुत सारी आत्माएं हैं जो इस बात को बार बार दोहाई दे रही हैं कि यदि आप चाहें तो मेरी शुद्धता से आप मुझे चंगा कर सकते हैं। If you will, you can make us untouchables clean. यदि आप चाहें तो मेरे इस अछूतपन से मुझे शुद्ध कर सकते हैं। Let's look around our environment or in surrounding. आइए हम अपने चारों ओर देखें। Our situation is like Makkan community. हमारी जो स्थिति है वो बिल्कुल मरकुस के समुदाय की तरह है। The government opposed and against us to proclaim and spread the good news to others. आज सरकार हमारे खिलाफ है कि हम यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करें। They are threatening many peoples in many different places with different ways. आज कई अलग अलग जगहों में कई अलग अलग प्रकार से जो लोगों को धमकाया जाता है। Who will proclaim and testify the gospel like the ex-leper today? आज उस कोढ़ी के समान कौन है जो प्रचार करने को जाने की इच्छा रखता है? Let us seek the will of God आइए हम परमेश्वर की इच्छा को पूछें and extend the compassionate love of God to all nations. और परमेश्वर का ये जो तरस भरा प्रेम है इसको सभी राष्ट्रों में लेकर जाएं। Let's testify what Christ has done for us in our life, और हम इस बात की गवाही दें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, in the midst of our adversities life. हमारे जीवन की घोर भरी निराशा के समय में भी। May the Lord strengthen all of us. परमेश्वर हम सभी को बलवंत करें। Let's pray. प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये वचन हमें दिया खुदावन। प्रभु आपका वचन जीवित है यीशु मसीह, हमारे यहाँ पर प्रचार करना खुदावन परमेश्वर ये सबके लिए आशीष का कारण हुआ प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस कोड़ी की ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर आपने हालेलुया परमेश्वर आपकी महिमा को लिया यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम ये दुआ करते हैं कि आज इस कोड़ी के समान खुदावन जो अपने अंदर उस खुशी को समा ना सका लेकिन बाहर निकल कर यीशु मसीह के मना करने के बावजूद प्रभु जी वो सबके सामने जाकर खुल्लम खुल्ला आप यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगा प्रभु। हम भी आज इस समाज में खुदावन जब जहाँ की परिस्थितियाँ बहुत बुरी हैं परमेश्वर, हमारे अंदर ऐसी खुशी हो खुदावन कि हम बाहर निकलकर परमेश्वर आपके नाम का प्रचार कर सके यीशु मसीह और आपकी महिमा को कर सके यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर भाई डेविड के लिए जिन्होंने आज प्रचार किया परमेश्वर, उनको आशीष करना परमेश्वर। हम बाकी के दिन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सभी क्रियाकलापों को आप आशीष करना, सारी स्तुति महिमा और जलाल परमेश्वर सिर्फ आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। I'll just take 1 or 2 minutes. I just want to give thanks all the community of NTC faculties, and thank you so much for allowing me to study here. And I get many knowledge and scripture knowledge from you. And God bless you more and more than you may be serving the Lord in a mighty way. Now let us receive benediction. Now the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you. Serve the Lord. Thy loving kindness